Name of the topic is conversion of nominal GDP into real GDP. Okay, and this video is basically related to the GDP and welfare part 1. So, before starting with this conversion of nominal GDP into the real GDP, you must watch the video GDP and welfare part 1. Now, I am going to start the second topic of GDP and welfare, that is called conversion of nominal GDP into real GDP. So, in the last class, in the part 1, we have studied that the formula of nominal GDP, basically which is measured at the current year price, the formula is price of current year into my quantity of the current year, and the formula of the real GDP is price of base year into my quantity of the current year. Okay, in which the base year prices remains constant, and we know real GDP is a better indicator of welfare because it changes only when the output changes as the price remains constant. Now we are using another formula, that is the formula of conversion of nominal GDP into real GDP. If the nominal GDP is given to you, but we know there is not a relevance of nominal GDP, there is a relevance of the real GDP, because nominal GDP is inflationary in character. Okay, so if we want to convert the nominal GDP into the real GDP, then which formula we have to use? And this is the formula: real GDP is equal to nominal GDP upon current price index into 100. What is this current price index? First of all, I want to tell you that what is current price index. We have already studied in the 11th class the chapter index number. Okay, so I'm not going in detail, I am just giving you the brief. If the we know the index value of the base year is always 100, the index value of the base year is always 100. If we calculate the current price index by using different method like last year's method, past year method, that is not in your course, the current price index value is already given to you. So basically, if the value of the current price index is 120, if the value of the current price index is 120, then ये 100 से कितना दूर है? 120. आंसर इज 20 दूर है. इट मींस इन द इकोनॉमी प्राइसेस राइजेस बाय 20%. अगर हमारा करंट प्राइस इंडेक्स 130 है, इट मींस प्राइसेस राइजेस बाय 30%. अगर हमारा करंट प्राइस इंडेक्स अगर 90 है, तो ये 100 से 10 कम है, इट मींस प्राइस इन दिस ईयर फॉल बाय 10%. अगर करंट प्राइस इंडेक्स 120 है, इट मींस प्राइसेस राइजेस बाय 20%. मींस जो चीज पहले 100 में आ जाती थी, आज उसी चीज को परचेज करने के लिए वी हैव टू स्पेंड रुपीज 120. जो चीज पहले 10 रुपीज की आती थी, उसी चीज को परचेज करने के लिए नाउ वी हैव टू स्पेंड रुपीज 12. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रोल ऑफ करंट प्राइस इंडेक्स. तो बेसिकली करंट प्राइस इंडेक्स शोज द इन्फ्लेशन और द डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. There is no need to calculate CPI by different method that you have already studied in the 11th class. Now there is one formula from which you can convert the nominal GDP into the real GDP. Now what's the formula that you have to see? Real GDP is equal to nominal GDP upon current price index into 100. So basically, why we are dividing the nominal GDP by the current price index, that you have to understand. When we divide the nominal GDP by the current price index, now for example, I divided by 120. For example, the current price index is 120. So जो इसका inflationary part है, nominal GDP का जो inflationary part है, जो कि prices से affect है, वो खत्म हो जाता है if we divided it by current price index. ठीक है ना. और अगर उसमें इन्फ्लेशनरी पार्ट खत्म हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रियल जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो एक फॉर्मूला याद करो, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. ठीक है ना. तो फॉर्मूला इज वेरी, so the basically the formula is clear to you, that is nominal GDP upon current price index into 100, and we divided it by current price index so that the inflationary parts of the nominal GDP get reduced and it converted into the real GDP. Now for example, I am giving you one example to explain the conversion of nominal GDP into real GDP.
for example, in this question, the nominal GDP is given to you 1,20,000. The nominal GDP is given to you 1,20,000 and the current price index is 120. मतलब it means GDP कंट्री का है कितना 1,20,000 and the value of the current price index is 120. When we have to calculate the real GDP, then the formula of real GDP is nominal GDP upon current price index into 100. So answer comes out to be 1 lakh. It means I want to tell you कि दिखने में हमें ये लग रहा है कि कंट्री की इनकम जो है दैट इज 1,20,000, बट रियल टर्म्स में अगर इनकम देखी जाए तो दैट इज ओनली रुपीज 1 लाख, बिकॉज 20% सो सिर्फ इन्फ्लेशनरी पार्ट है. 20% क्या है? इन्फ्लेशनरी पार्ट है. सो बेसिकली रियल जीडीपी कंट्री का कितना है? सिर्फ 1 लाख. सो अगर मान लो इन द प्रीवियस ईयर है ना, इन द प्रीवियस ईयर अगर हमारा रियल जीडीपी बढ़ रहा है, पहले मान लो हमारा रियल जीडीपी 80,000 था और अब बढ़ के अगर 1 लाख हो रहा है, इट मींस द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. बट अगर हमारा रियल जीडीपी पहले भी 1 लाख था और आज भी 1 लाख है, चाहे नॉमिनल टर्म्स में हमारी ग्रोथ हो गई है बिकॉज प्राइजेस की वजह से भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. तो अगर हमारी इकोनॉमी का रियल जीडीपी बढ़ता है देन दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कैलकुलेट द रियल जीडीपी. तो एग्जाम में आज से 3 साल पहले ये रियल जीडीपी पे हमें न्यूमेरिकल्स आए थे बोर्ड एग्जाम में. एक सेट था जिसमें हमें नॉमिनल भी गिवन था, सीपीआई भी गिवन था एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी. सेकेंड सेट में रियल गिवन था, करंट प्राइस इंडेक्स भी गिवन था, वी हैव टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी. एंड थर्ड सेट में वी हैव टू कैलकुलेट सीपीआई व्हेन द रियल एंड द नॉमिनल जीडीपी इज गिवन टू यू. सो आई थिंक द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू. एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो चेंज आता है ना, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है करंट प्राइस इंडेक्स. क्या रीजन है? करंट प्राइस इंडेक्स. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कंट्री का करंट प्राइस इंडेक्स मान लो अगर 100 होता, अगर कंट्री का करंट प्राइस इंडेक्स 100 होता, 100 का मीनिंग ये है ना तो इन्फ्लेशन है और ना ही कंट्री में डिफ्लेशन है, ना तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ना ही प्राइसेस कम हो रहे हैं, है ना. तो ये सोचो अगर ये 100 होता तो 100 से 100 क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता. तो बेसिकली रियल किसके इक्वल आ जाता? नॉमिनल के इक्वल आ जाता. अगर सीपीआई भी 100 है और ये 100 ये वैसे भी है फॉर्मूला में, है ना, तो इट मींस रियल नॉमिनल के इक्वल आता. तो रियल को नॉमिनल से अलग करने वाला कौन है? ये सीपीआई. रियल को नॉमिनल से अलग करने वाला कौन है? ये सीपीआई. तो बेसिकली सीपीआई की वजह से रियल नॉमिनल से अलग आता है जीडीपी. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. ये करंट प्राइस इंडेक्स को ही हम जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जानते हैं बिकॉज ये जीडीपी डिफ्लेटर मतलब करंट प्राइस इंडेक्स ही है जो रियल को नॉमिनल से अलग करता है, उसको डिफ्लेट करता है. दैट्स व्हाई ध्यान रखना दिस करंट प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. तो देखो मैंने लिखा हुआ है करंट प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. एंड टेल मी अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर को यहां पर लेके जाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 लाइक दिस. एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट द करंट प्राइस इंडेक्स, है ना. तो एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाए करंट प्राइस इंडेक्स या पूछा जाए जीडीपी डिफ्लेटर इज वन ऑफ द सेम थिंग. एंड जीडीपी डिफ्लेटर और द करंट प्राइस इंडेक्स इज, करंट प्राइस इंडेक्स होता क्या है? एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस. जैसे हमारा करंट प्राइस इंडेक्स अगर 120 है, इट मींस सारी कमोडिटी का जो एवरेज प्राइस है दैट इज 120. तो जीडीपी डिफ्लेटर इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस that makes your real GDP because इसके बिना हम real GDP कैलकुलेट नहीं कर पाते. ठीक है, क्लियर. तो आई थिंक दिस फंडा इज क्लियर टू यू. एक टॉपिक तुम्हारी बुक्स में गिवन है और टॉपिक का नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम एंड द रियल नेशनल इनकम. अभी जो हमने टॉपिक करा है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी. बट एक टॉपिक तुम्हारी बुक्स में और है संदीप गर्ग में, दैट इज नॉमिनल नेशनल इनकम एंड द रियल नेशनल इनकम. कोई फर्क नहीं है दोनों में. रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी
जैसे होता है वैसे ही नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम होता है. व्हेन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम at the current year price is called nominal national income, and we calculate the national income at the base year price is called the real national income, है ना. और base year prices remains constant, so real national income is also called national income at constant price. ठीक है. एंड करंट प्राइस नेशनल इनकम इज कॉल्ड नॉमिनल नेशनल इनकम. तो इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी, in the place of GDP, you just have to use national income. Your second topic is also prepared, nominal national income and the real national income. I hope you understood this topic. Even if you still have any doubt, you can mention in the comment box.